Hold on, I don't think I look rundy enough. I need to look rundier. Wait. I hope I look rundy enough now. What I'm the fuck, bro? a proud rundy. For context, watch this. Bro, can anybody do a R word counter in this video? Can anybody do an R word counter in this video? That's crazy already. Like what, 11 counts? Video. Rundy. 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 Oh my god. Bro. Rundy. Rundy. Bro, it just gets worse. It just gets worse. Did you find that uncomfortable to hear? I also used to cringe at that word. But now it makes me feel nothing. You see, men call me that every single day in my comments. It's just a word now. Earlier, it used to refer to sex workers and it became an insult, which is Bro, how? Ek second. How the fuck have you said Rundy like 1500 times in 5 seconds and you are muting sex in sex workers? How are you censoring sex workers but blabbering Rundy 100 times in 5 seconds? What? ये क्या logic है भाई? it's just a word now. Earlier, it used to refer to sex workers and it became an insult, which is ridiculous because the insult should be on the man who's sleeping with sex workers and not on the workers themselves. But of course, there's no insult like that. Now, Rundy isn't even referred to sex workers. It's used for any woman who has a voice, any woman who looks like she's independent. Guess what? Rundis like you and me deserve respect even if you disagree with us. If we stop finding this word insulting, men will lose the power to use it as an insult. I no longer find this word insulting or hurtful. I'm a proud Rundi, so feel free to call me that. I don't mind. Rundi supremacy. This video is for all the girls who have been called Rundi, Chinal, Vaishya, prostitute, whore, or any other regional words that mean these things. My heart goes out to you. I'm sure it was really difficult being called. गांधी जी ने निकाला था डांडी मार्च. गांधी जी ने निकाला था डांडी मार्च. याद रखना भाइयों. याद रखना. I have also been called this word. If you want to reduce the pain that it has caused you, you can try claiming it as your own. If you've ever been called Rundi, just accept it. Fuck, bro, you that's are one. crazy. If you accept it, it will hurt less. Because what is the worst that will happen if you accept it? What will they do to make you feel bad? Call you Rundi? Okay. Jokes apart, you don't have to publicly accept it. If you want to do that, feel free to do that. I did that. But in case it's unsafe for you to do that, you can just accept it in your heart. Even that will be enough to reduce the power that word has on you. Rundi traditionally refers to women who offer their body to men in exchange for money. But this is just a traditional definition of it. In this video, we're going to see that it doesn't just refer to sex workers. Tarini was called Rundi for the first time in her life when she was just 6 by her own father. For context, this is what a 6-year-old girl looks like. Tarini's case is not an exception. It is the norm. In India, girls are regularly called Rundi by their parents. I'll tell you very honestly, very true. But it's mostly the mothers, not fathers. आप किसी भी ऐसी लड़की से पूछ लो who has called her this in her household, 9 out of 10 times it's the mother, not the father. Not saying the father is any nicer. Father भी abusive होते हैं, but to call her the R word, it's usually the mother. ठीक है, फैक्ट बता रहा हूँ मैं तुमको. तो anyway. In case you are one of those girls, please do share your experience in the comment section. You deserve a space to talk about it and it was not your fault. Your voice matters to me, okay? I'm just saying this because, you know, she gave an example कि तारणी was called an R word by her father when she was 6. Father इसने बोला, ऐसा नहीं कि father नहीं बोलते होंगे, but 9 out of 10 times it's the mother. But she had to say father because awkward goat, but ठीक है. As a therapist who has been working for almost 5 years now, I can assure you, in our country, it is normal to abuse your child as a way to discipline them. Abuse happens physically, verbally, emotionally. And it happens more when you're a girl. Because a girl child is seen as a negative thing in India. Our society hates girls. And if you don't believe me, then tell me, why is there a law which says that you cannot check the gender of your child?
This law exists because people kept aborting the child when they found out it's a girl. And this still happens even though it is illegal. People in India hate girls enough to kill them before they're even born. There is no such thing as male feticide. Male feticide actually sounds funny because of how impossible it is. Let's be thankful to all the great parents who allow their girl child to be born. Even when people allow their girl child to be born, they try their best to control their life as much as they can. There is a very tiny percentage of girls who actually get some level of freedom in their life. There is no girl who has Strawman, nah, I think she's right. I think she's right. See, we will criticize her where she is not right. Here she is right. And this is what people do wrong. तुमको पता awkward goat के फॉलोअर्स इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी? बिकॉज दिस इज व्हाट पीपल डू रॉन्ग. जब कोई awkward goat के अगेंस्ट बोलता है ना, वो इतना क्योंकि शी सेज सच डिरेंज्ड थिंग्स समटाइम्स कि तुम्हारा मन ही नहीं करता इससे एग्री करने का, और ये जानबूझ के सेंसिबल बातें बोलती है. फिर समझ रहे हो इसका गेम? ये खेलती क्या है मैं बताऊँ? वो 10 सेंटेंसेस बोलेगी, 2 में कुछ ऐसा बोल देगी कि तुम्हारा दिमाग फट जाएगा कि भाई ये क्या बोल रही है, और 8 में कुछ सेंसिबल बोलेगी. तो जो इसको 2 को लेके क्रिटिसाइज कर रहा है ना, उसको 8 में अग्री करना पड़ेगा. बट उनका ईगो ऐसा हो जाता है कि वो अग्री नहीं करते हैं वो 60 से, क्योंकि भाई वो 2 में इतना कोई कंप्लीटली स्टूपिड बात कह रही है तो वो 8 को डिस्कार्ड कर देते हैं. इसका फ़ायदा ये उठाती है, ये बोल के कि मैंने तो ये बातें भी बोली हैं, बट वो उसी को फोकस कर रहे हैं. एंड फिर इसके फॉलोअर्स बोलते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि वो इसकी सारी बातें सुनते हैं. तो इसका ये फ़ायदा उठाती है. यही दिक्कत है पूरी. ये पूरी चेन इसने ऐसे बना के रखी है. the same level of So freedom right now she is making sense. Yes, she is completely तो नहीं, but she is making sense 80%. as a boy in our country. It is literally not possible. Because even if the parents are progressive and open, the society isn't. So the girl will always experience some amount of subjugation outside the house. Look, violence against women isn't just rape. Rape doesn't just happen in a vacuum. A man doesn't just randomly decide that, hey, let me just go rape a girl. That's not how it works. Rape is just one of the examples of all the acts of violence that happen against women in our country. And why don't women fight back? Because they ruin the self-esteem of little girls when they are young. They ruin it to the extent that girls can't fight back. Girls are silenced every day. Everything that they do is controlled. What they wear, how they talk, what they study, if they study. This video is going to talk about one of the ways women are silenced in our country. I was thankfully never called Randi by my parents. I am extremely privileged and I'm really thankful that this wasn't my experience. I was called Randi probably like 3-4 years ago when I started making content on the internet and became viral. A random guy in the comment section called me Randi. At that time, I was really offended, hurt, and also confused because I'm not a sex worker. I make videos on feminism and mental health on my page. I had never been called Randi in my entire life before this. I was hesitant to even say this word. Like, say it out loud. It just evokes this sense of shame and disgust when you say it as a woman. Randi. But then these comments increased. I started getting called Randi almost every day. The more viral my videos get, the more Randi comments I get. It's almost like the number of Randi comments show me how popular I am. So the first time I was called this word, I put it up on my story and a few girls replied to it saying that their parents also called them that in their childhood. I was so shocked to hear this, but I thought that it's just a small percentage of women. Like, this is not possible. This is such a horrible thing to happen to someone, right? I had literally never heard of a girl being called Randi by their parents before this. But then after a while I forgot about it and started ignoring the Randi comments. Recently, I was hanging out with a relative of mine. She studied in an engineering college in India and she was just telling me about her experiences there. Engineering colleges usually have more boys than girls. In her college, it was the same. She was one of the very few girls. When she was just casually telling me about her experiences in college, she told me that whenever she would walk into the class full of boys, all of them would shout Randi at her. Why? Because she's a girl in a classroom full of boys? Apparently, studying in an engineering college makes you a Randi. Of course, the college didn't do anything about it. They just ignored it. And by ignoring it, they supported these boys. Our systems, including our educational institutions, support this kind of mindset. Subjugation of women. That's when I remembered those messages I got from those 90% of accredited universities in India, क्या बोलते हैं, NAAC बोलते हैं ना, नेशनल एकेडमिक एक्रेडिटेशन, पता नहीं क्या सी का क्या फुल फॉर्म मुझे नहीं पता. NAAC क्या होता है ये? असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन
काउंसिल जो भी है, तो ये नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल 90% जो इनसे एक्रेडिटेड होती है यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, एक लड़की बस इतना बोल दें कि ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है, क्या बोल दे, परेशान, ये भी नहीं कि उसने करा क्या है, परेशान, रिटर्न में दे दे परेशान, परेशान, हरासमेंट वगैरह कुछ नहीं, परेशान, बॉदर, रस्टिकेटेड, सस्पेंडेड, बस रिटर्न में दे दे। फैक्ट बता रहा हूँ आपको, फैक्ट। बच्चा है चाहे कोई टीचर है, कुछ नहीं होना, बस उसको एक खाली सफ़ेद पेपर पे लिखना है, टू द HOD XYZ इज़ परेशानिंग मी, सिग्नेचर UID, गेम ख़त्म। फैक्ट बता रहा हूँ तुमको, कहीं पे भी जाके चेक कर लो, कहीं पे भी जाके चेक कर लो, ठीक है। तो ये दिस इज़ बुलशिट, दिस इज़ कंप्लीट बुलशिट। Unless her friend is studying in a fucking tier 5 some makeshift institute which does not even exist. Little girls who said that their parents called them Randi. I started noticing this word everywhere. It is in the comment sections of female creators, regardless of what they're doing in the video. Dancing, Randi. Singing, Randi. Giving information, Randi. Get ready with me vlog, Randi. But none of these girls are sex workers. I am not a sex worker. My relative was not a sex worker. So why are we being called this word? Because now it refers to any woman who is out of your control. An independent girl who doesn't listen to anyone. According to the people who use this word, any girl who is independent and free is no less than a sex worker. Because being a sex worker, according to them, is the worst thing a woman can be. It's a यार पता तुमको, मेरे दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जब मैं ये सब सुन रहा हूँ, देखिए बहुत सारी लाइक काउंटर्स आ रहे हैं, फिलोसफिकल टेक्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, मुझे कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन एक तो मैं थका हुआ हूँ, दूसरा मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है, और दूसरा पता है क्या लग रहा है मुझे, कि मेरे को ये स्ट्रीम के बाद आने वाला है कॉपीराइट स्ट्राइक। तो मैं पता है क्या करूँगा, मैं अभी सुन रहा हूँ, अभी जो मेरे मुंह से निकलेगा मैं बता दूंगा, मैं बनाऊँगा वीडियो, मैं बनाऊँगा वीडियो इस पर, क्योंकि और कुछ मैं कर नहीं सकता। तो हम इस पर सिर्फ वीडियो बना सकते हैं भाई, स्ट्रीम पे मैं बोलूँगा कुछ, कॉपीराइट आ गया तो एड लग जाएंगे मेरे। तो मेरे को वही है कि मैं स्ट्रीम पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बट मैं सुन रहा हूँ, जितना मेरे को लगता है बोला जा सकता है मैं बोलूँगा, फिर मैं बनाऊँगा वीडियो, फिर आएगा मज़ा। shameful thing. Being a sex worker, according to independent and free, is no less than a sex worker. Because being a sex worker, according to them, is the worst thing a woman can be. It's a shameful thing, according to them. Shameful because how can a woman be in charge of her own sex life? Real sex workers who do this for a living aren't even in charge of their own sex life, but that's a different conversation. People think sex workers are open, free women who love sex and consent to it all the time. What's weird is that this word is an insult, Randi, prostitute, whore. But for some reason, going to a sex worker is not seen as a shameful thing. Being a sex worker is a shameful thing. Most of the people who go to sex workers are men, and they're married men. They're fathers, they're brothers, they're sons, and they exploit sex workers. They're violent with them, they abuse them, and they force them. But there is no insult for such men. The insult is Randi, because men always get a free pass. I put up a story asking my followers to share their experiences of being called Randi. And shockingly, a lot of them were called this word in their childhood by their parents. It's ridiculous and sad. I asked some of them to share a video of them sharing their experiences so I could put it in this video because I wanted their voice to be there, but they all refused because they were ashamed that they were called that. What if other people see that they're being called this, that their parents are calling them this? मेरी स्टोरी है, मेरी खुद की बात है। मैंने अपने घर वालों से सुना है, अपनी मम्मी से, इवन अपने पापा से भी, जब मैंने जब अपनी ये स्टैंड लेने की कोशिश की या लिया था, तब मैंने ये शब्द सुने हैं। इससे रुक जा। मेरी खुद की बात है, मैंने अपने घर वालों से सुना है, अपनी मम्मी से, इवन What did I say? मम्मी से, इवन अपने पापा से। बाय लैंग्वेज शी इज एक्सप्रेसिंग कि मम्मी तो बोलती हैं, पापा भी बोलते हैं, बट द वे दैट शी इज सेइंग इट, यू कैन फिगर आउट कि मम्मी ज़्यादा बोलती हैं। सिंपल फैक्ट है भाई, दिस इज अ फैक्ट। अपने पापा से भी, जब मैंने जब अपनी ये स्टैंड लेने की कोशिश की या लिया था, तब मैंने ये शब्द सुने हैं। इससे भी एक्सट्रीम लेवल का मैंने सुना है, बिकॉज इतना नॉर्मल लगता था मेरे को, पता नहीं
अब बड़े होने के बाद में समझ आया है कि ये क्या है, ये क्यों कहा जाता है, एंड देन क्लिक ऑन माई माइंड कि ये गलत है, क्यों हो रहा है, मतलब लड़कियों के साथ। हर वर्ड जब से जब तक समझ आया तब तक इसका मीनिंग पता चला, या जो भी बातें सुनी थी मैंने उनका जब तक मीनिंग समझ में आया मुझे, तब तक वो मतलब एकदम नॉर्मलाइज हो चुका था। और अपन कोई स्टैंड भी ले तो एकदम से क्या हो गया, ऊपर चढ़ रही है क्या, सामने बोल Oh, this is true, this is real. ये तो सही बात है, रही है क्या, लाइक ऐसे ये तो सही बात है. ऐसी बहुत सारी बातें जो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती बिकॉज दिस इज द शॉर्ट क्लिप. सो Most of the women who replied to my story told me to keep it anonymous because they feel ashamed and scared. What if their parents see this? I don't blame them. What It if is their really scary parents see to talk this? I about don't it. think they are ashamed. They're scared of what. यार ये awkward goat ना बहुत चालाक है भाई. ये awkward goat बहुत चालाक है भाई. मतलब I doubt भाई even Shwetab sometimes does he even see like how fucking deceiving this woman is. I sometimes think he does not know it. भाई ये बहुत बहुत माइन्यूट तरीके से चीज़ें डायरेक्ट करती है, मिसडायरेक्ट बहुत माइन्यूट तरीके से. जैसे फॉर एग्जांपल दे आर अशेम्ड, यस दे वांटेड टू बी एनोनिमस, यस बट बिकॉज देयर पेरेंट्स विल सी इट, नो they are ashamed because they have mutuals on social media, people on social media. Nobody's father from fucking Bihar is stalking awkward goat's account and her stories. Nobody's doing that shit. And parents are abusing her in the first place. पेरेंट्स ही तो अब्यूज कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को तो देखना चाहिए ऊपर से कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है. So no, she is not afraid that her parents will cheat. She is afraid that her friends, her mutuals will see it, जिनकी लाइफ relatively normal रही है, and they will pity her or they will look at her in a certain light that these women don't want to be looked at. पेरेंट्स का कोई एंगल नहीं है वहाँ पे. बट ये मिसडायरेक्ट ऐसे करती है पता है. एंड ऐसा नहीं कि फ्री फंड में मिसडायरेक्ट कर रही है, कुछ ना कुछ होगा जिसमें यहाँ पे ये यूज़ करेगी ये चीज़ को, जहाँ पे यूज़ करेगी इस चीज़ को, इसलिए इसको मिसडायरेक्ट कर रही है जानबूझ के. ठीक है, बट एनीवे. And to tell people about it publicly. And the sad thing is that the girls are feeling shameful and scared about it, when actually it should be the people who are calling them that. The people calling the girls Randi should be the ones feeling scared and ashamed. But that's not the case. When I uploaded this story, I got a DM from a man. He is blaming me for having a family. Normal household में girls don't get called Randi by their parents. Sorry for you if you grew up in a brothel. I mean, you are right actually. This guy is right, but the question is कितने घर नॉर्मल होते हैं ये बता दे मेरे को. इंडिया में कितने घर नॉर्मल हैं? What is normal household? तेरे को पता है इंडिया में नॉर्मल क्या है? अरेंज मैरिज. तेरे को पता है अरेंज मैरिज टेक्निकली क्या है? रेप, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेप होता है अरेंज मैरिज टेक्निकली स्पीकिंग. Because a woman is forced to marry someone and sleep with someone that she does not consent to. She's forced by two families. So that is normal. That is the normal we are talking about. And that is a socially acceptable normal. तो मतलब इसमें layers of problems है भाई. Layers of problem. तो इंडिया में अगर मैं कहूँगा 1000 फैमिलीज हैं, मे बी 10 नॉर्मल होंगी, मे बी 10 नॉर्मल होगी. और भाई मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, इतनी जलती है ना भाई लोगों की, मेरी भी जलती है भाई. व्हेन आई सी अ नॉर्मल फैमिली, व्हेन आई सी सम अ चाइल्ड जिसके मम्मी पापा दोनों बहुत सपोर्टिव है, प्यार करते हैं, बचपन से बड़ी अच्छी ज़िंदगी गई है, ट्रिप्स पे जाते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता. इट सीम्स लाइक अ फकिंग ड्रीम भाई, सीम्स लाइक अ फकिंग ड्रीम. और पेरेंट्स वांट्स टू डू अरेंज मैरिज. अबे तो पेरेंट्स की ही बात कर रहा हूँ दोस्त, तुम्हारी बात नहीं कर रहा मैं, पेरेंट्स की ही बात कर रहा हूँ. पेरेंट्स ने कौन सी मनमर्जी अरेंज मैरिज करी है भाई? पेरेंट, तुम्हें लगता है तुम्हारी मम्मी अरेंज मैरिज में खुशी खुशी गई है अंदर? बेटे बड़े हो जाओ थोड़े दोस्त. ठीक है, अब 50 साल बाद तो मम्मी बोलेंगे कि नहीं कि मेरी इच्छा नहीं थी, मेरे को किसी और से प्यार था, या फिर ये आदमी मुझे पसंद नहीं था. जब तुम हो चुके हो, तुम्हें हुए 30 साल हो चुके हैं, तुम्हारा भाई हो चुका है, तब तो वो बोलेंगी नहीं. बट जब वो 19 साल के थे तब पूछते, तुम पता चलता तुमको. ठीक है, ये सच्चाई है, आप मानो ना मानो, सच्चाई है ये.
family that calls me this and shaming me for it because I'm talking about it. This is how they silence women from talking about it, and that's why we don't hear of women being called Randi by their parents. Generally don't know, इसलिए asking is the R word in particular and used that regularly in Indian households. It is not regularly, but I would say like you need to understand it. It's like levels, right? It's like levels. We paint. There's levels to this shit. जैसे मान ले कि ये एक fuck. जैसे मान ले ये सो ये एक इंडियन हाउस होल्ड है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब ये है 10 आउट ऑफ 1,000, ठीक है। इसके नीचे होगा ये हाउस होल्ड जहाँ पे अगर एक लड़का है और एक लड़की है तो इसको सप्रेस करा जाता है। दिस वुड बी लाइक 900 आउट ऑफ 1000। सप्रेस मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बांध के रख दिया, बट सप्रेस मतलब कि लड़की को ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, लड़का रात के 10 बजे बाहर रह सकता है, लड़की नहीं रह सकती, ऐसा टाइप का, ठीक है। अब इसके नीचे वो हाउस होल्ड आते हैं जहाँ पे लड़की को शेम करा जाता है या फिर अब्यूज़ करा जाता है फिजिकली वर्बली, और इसमें लड़के को भी करा जाता होगा क्योंकि अब्यूज़िव हाउस होल्ड हैं। अब्यूज़िव हाउस होल्ड्स का मतलब कि मम्मी पापा दोनों लड़ाई करते हैं, बच्चों को पीटते हैं, सब करते हैं, उसमें लड़का लड़की का मैटर नहीं करता। बट लड़के को तुम क्या ही बोलोगे, तो लड़कियों को तुम आरवर्ड जैसी चीज़ें बोलते हो, कुछ करते हो, ऐसा टाइप का सीन होता है। तो ये होता होगा ब्रो, लाइक प्रॉब्ली लाइक आई डोंट नो, फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, लाइक जो ये हाउस होल्ड्स हैं या फिर जो रेगुलरली वर्बली अब्यूजिव हाउस होल्ड्स हैं, जो फिजिकली अब्यूजिव हाउस होल्ड्स हैं, ये इनके बीच में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्बल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, ये सब हो रहा है। ये मतलब एकदम नीचे के लेवल पे है, ये सबसे नीचे लेवल पे है। जैसे ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3, ये स्टेज 4 है, तो ये यहाँ पे है। बट ये इसकी फ्रीक्वेंसी आई वुड से होगी from my personal experience 2 out of 8 maybe, or maybe 1 out of 9. I think 1 out of 9 is more of a yeah. मैं अगर से अपने दिमाग के दम पे बोलूँ, और मेरा दिमाग इतना ख़राब नहीं है, बहुत एक्यूरेट होता है मेरा दिमाग, पूछना मत कैसे, बट आई वुड से 1 आउट ऑफ 9। अगर तुम हर 9 लड़की में से एक लड़की को पूछोगे तो शायद उसने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करा होगा, ठीक है। अब नाउ दी अदर थिंग इज़ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड, फॉर दैट टू हैपन ये सारे स्टेजेस होने चाहिए। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपकी फैमिली बहुत हेल्दी और आपको फ्री में आर वर्ड सुनाई देता है। आपके मम्मी पापा भी लड़ाई करते होंगे, आपके पापा आपकी मम्मी को भी बोलते होंगे आर वर्ड, वाइस वर्सा, ठीक है। ऐसा सीन होता है, या तो आपकी मम्मी आपके पापा को उल्टा सीधा बोलती होगी कि आदमी मतलब यू नो वट एवर द इक्विवेलेंट इज कि चीटर है या कुछ भी है, या यू नो इनकॉम्पिटेंट है या कुछ भी। तो द थिंग इज कि फॉर दिस टू हैपन these things also have to be there, not necessarily but most likely they will also be there. Others forms of abuse will always be there, समझ रहे हो। एंड यहाँ जैसे ये तो मैंने बताया कि 1 आउट ऑफ 9 है, राइट, बट ये जो चीज़ें हैं ना बाकी स्टेजेस ब्रो, दे आर वेरी कॉमन, दे आर लाइक आई वुड से 6 आउट ऑफ 9 मे बी, और मे बी इवन 7 आउट ऑफ 9। दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाट यू नीड टू रियलाइज, ठीक है। Parents. That's his username on Instagram, by the way, just in case you're looking for it. When I made that reel, I was criticized so much. Any woman who got that much criticism would probably. All this issue occurred with people who are jobless, unemployed, poor, not able to make money to do usually this stuff. ऐसा कुछ नहीं है, but हाँ it is jobless, poor, unemployed तो बिल्कुल भी नहीं, but lower middle class people frustrated with their lives, sure. बट नहीं, ऐसा नहीं है कि सारा उन्हीं का है। अमीर लोगों को भी मैंने देखा ये सब हरकतें करते हुए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये ट्रॉमा रिलेटेड चीज़ें, ये सप्रेशन रिलेटेड चीज़ें, ये सेक्सुअल लिबरेशन रिलेटेड चीज़ें, ये बहुत डीप चीज़ है, साइकोलॉजिकल, यू नो, बहुत डीप चीज़ें हैं ये, बहुत डीप चीज़ें हैं ये। तो जैसे मान ले जस्ट फॉर अ केस स्टडी, कोई बहुत ही अमीर फैमिली है, उसमें क्या है, जो बाप है क्योंकि वो बहुत अमीर है
वो चीट करता है उसकी अपनी बीवी पे। उसके बच्चों को दिखता है कि उसकी बीवी मतलब उसकी मम्मी जो है उन बच्चों की मम्मी रात में रोती रहती है क्योंकि पापा चीट करते हैं। तो जब भी पापा घर आते हैं तो जो उसकी मम्मी होती है जो अपेरेंटली रिच वाइफ है वो उसको गालियाँ बकती है, रंडुआ बोलती है, कुछ और बोलती हैं, और उसकी फीमेल फ्रेंड्स को बोलती है कि तू आज उस रंडी के साथ है वॉट। तो बच्चों को देखते हैं, बुरा असर पड़ता है। बच्चे कुछ गलत कर देते हैं, अगर कोई उनमें से बेटी है तो वो माँ उस बच्चे को बोल सकती है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ सिनेरियो। ये सब स्टोरी में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता भाई। तुझे कुछ नहीं पता भाई, तुझे कुछ नहीं पता दोस्त, तुझे कुछ भी नहीं मालूम है। ये मैं अपने मन से कहानी नहीं बता रहा हूँ। आई नो दिस बिकॉज आई हैव सीन दैट हैपन and I haven't seen it once or twice. I have had women come to me who have told me this. This happens in reality, and it's happens in the frequency that I told you. ठीक है? Please मैं stop. ऐसा जस्ट बिकॉज मैं समदीस पार्टी को देख के 4 जोक मारता हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं तू क्या कोई लॉ स्टूडेंट है कि यू मस्ट बी अ लॉ। आई डोंट थिंक यू नो मी, डू यू? ओह नो, ही इज़ नॉट अ लॉ स्टूडेंट, बट मुझे लगा लॉयर का वो गाउन पहना है उसने। यू डोंट नो स्टफ ब्रो, यू नो। Making content. I got criticized by the regressive people and the progressive people. This word is used as a way to यार उसको silence बोली women. मत करो, उसको बोली मत करो। पता है मुझे लग रहा है कि इसको ना जेन्युइनली ऐसा लगता है कि ऐसा होता नहीं है। इसको जेन्युइनली इसको कल्चरल शॉक लग रहा है कि भाई ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसने शायद कभी लाइफ में देखा नहीं है, फिर कोई फीमेल से नहीं सुना, तो इसको जेन्युइनली लग रहा है कि कुछ। आई डोंट थिंक इसका इंटेंशन खराब है। बट इसको ये ही इज़ जस्ट ऑब्लिवियस टू इट। मतलब ही इज़ इग्नोरेंट भी नहीं कह सकते, ही इज़ जस्ट ही डजंट हैव अ क्लू। सो इसमें इसकी गलती नहीं है। गलत बात का स्ट्रीम से आया हूँ भाई, अच्छा कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। बट थोड़ा सुन, मेरी बात समझ दोस्त। तेरे को लगता है ना ऐसा नहीं होता, इसका मतलब है तेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। से थैंक यू भगवान मैं अगर मानता तो उनको थैंक यू बोला कर दिन में 10 बार। क्योंकि अगर तू जानने लगेगा ना कि लोगों के घर में क्या चलता है। ये तो अभी लड़कियों के साथ का अब्यूज़ है भाई, लड़कों के साथ भी अब्यूज़ होता है। कैसा कैसा होता है तुझे आइडिया नहीं है। और जिस जनरेशन को तो बड़ा अच्छा मान रहा है ना भाई, 60% तेरी मम्मी पापा की जनरेशन, मेरे तेरे मम्मी पापा की जनरेशन की बात बता रहा हूँ, 60% लोग चीट करके बैठे हैं। 60% मतलब समझते हो 60% का मतलब मैथमेटिकली 10 में से 6। और ये 10 में से 6 जो चीट करके बैठे हैं ना मेरे भाई, ये इन्होंने तो एडमिट करा है सर्वेयर्स को कि हमने चीट करा है। तो सोच कितनों ने नहीं करा होगा एडमिट। कोई दूध का दूल्हा नहीं है भगवान। पेरेंट्स कोई भगवान नहीं होते, वो भी इंसान होते हैं। जितने हरामी तुम हो उतना ही हरामी तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी भी हैं। तुम बस एडमिट नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि पेरेंट्स भगवान होते हैं, कुछ नहीं होते। पेरेंट्स होते हैं। जैसे तुम हो, जैसे मैं हूँ, वैसे ही हमारे माँ बाप है, और कुछ नहीं है। ठीक है? Women, and somehow me claiming it as my own was seen as a bad thing. Some people criticized me saying that I'm normalizing the word Randi by saying Randi supremacy. But I can't. I'm not normalizing it. 60% फॉर रियल डैम। या आई थिंक ये फिगर मैंने पता है ऐसे मन से नहीं बनाया। आई थिंक अर्ली 2000s में कोई सर्वे हुआ था इंडिया में ही, इंडिया का फिगर है ये, बाहर का नहीं बता रहा हूँ मैं तुमको। एंड वहाँ पे ऐसा कोई फिगर था। मतलब मैं गलत हो सकता हूँ इन द एग्जैक्ट नंबर, बट बॉल पार्क फिगर 60% ही है। मतलब 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, बट बॉल पार्क 5% ऊपर नीचे हो सकता है, बॉल पार्क 60% ही है। It is already normalized. Every single person who criticized me for calling myself Randi and saying that I'm a proud Randi has internalized misogyny in them. Because I had a look at all of their pages. They've never made a video calling out the men who call women Randi. But for some reason, they felt the need to make a video on me calling myself Randi. Apparently, me accepting that I'm It's definitely more than 98% now. Bro, it's complicated. It's complicated. अभी तो एक्सेस मिल रहा है लोगों को टू मोर पार्टनर्स। तो उससे क्या हो रहा है ना, अभी का तो मुझे नहीं पता क्या सीन है, बट आने वाले 5 सालों के बाद जितनी शादियाँ होंगी, आई कैन अश्योर यू ऑलमोस्ट all of them are going to suffer. Almost all of them. Because this is going to be the first generation which is very used to Bumble, Tinder, Hinge, which is very used to Instagram, which is very used to Snapchat, which is very used to multiple partners, situationships, casual relationships. ये सब पहली बार हो रहा है। हमारी पहले जितने भी 1000 सालों हम जिए हैं, ये सब कभी नहीं हुआ है। ये सब हमारे साथ हो रहा है, तो हमारे लगने वाले हैं, बहुत गंदे लगने वाले हैं। a Randi and not But India doesn't
Doesn't India have the lowest divorce rates? Why is that? Because India is a very orthodox society. इंडिया में डिवोर्स लेना इजी नहीं है. India is still very patriarchal, and a lot of most of India is गाँव. Most of India मेरे भाई is गाँव. It's not दिल्ली मुंबई. अगर तू दिल्ली मुंबई में जाके देखेगा ना, अगर तू इंडिया के स्टार्ट्स छोड़ दे, तो बस मेट्रो सिटीज़ के स्टार्ट्स पकड़, पता है डिवोर्स रेट्स कैसे हाइक कर रहे हैं. द प्रॉब्लम इज, तुम लोग ना इंडिया बोलते हो तो तुम्हें समझ में नहीं आता इंडिया क्या है. देखो इंडिया, इंडिया इतना बड़ा है, ठीक है. अब ये पूरा इंडिया है और ये है तुम्हारे दिल्ली मुंबई, ठीक है. डिवोर्स होते हैं यहाँ. यहाँ ये है तुम्हारे बिहार जैसे गांव के, बिहार के सबसे नीचे वाले गांव. ये है तुम्हारी टीयर टू, ये है तुम्हारी टीयर टू सिटीज़. बट ये मेन इंडिया है भाई. ये मेन इंडिया. ये पता है कितना है? ये 70% है. थर्ड, और ये मे बी 25% है, और ये 5% है, ठीक है. तो यहाँ पे कोई डिवोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है मेरे दोस्त. यहाँ पे डिवोर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है डिवोर्स का. आपको, आपका पति आपको मारता हो भी हो ना, आपका पति आपको बेच दे तो भी आप डिवोर्स नहीं ले सकते. यहाँ पे एक गाँव में पंचायत राज चलता है. यहाँ पे हो सकता है आपका पति साला पंचायती हो. और यहाँ पे डिवोर्स नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज अभी भी बहुत ही पेट्रियार्की चलती है. यहाँ पे उतनी वुमेन को उतनी लिबरेशन है नहीं. लोग डर डर के जीते हैं सोसाइटी के डर से. जॉइंट फैमिलीज एंड वॉट नॉट, न्यूक्लियर फैमिलीज भी यहाँ पे बहुत कम है. मेन फंडा यहाँ पे होता है. तो अगर आपको डिवोर्स के बारे में जानना है ना इंडिया में, आप इनके स्टैट्स चेक करो दिल्ली मुंबई चंडीगढ़ के, और आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे ना पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि डिवोर्स रेट्स पता है कैसे बढ़े हैं. ऐसे, मान लो दिस इज 2005, दिस इज 15, दिस इज 25. इट्स लिटरली शॉट अप लाइक दिस, ठीक है. एंड इट्स ओनली गोना गो अप. इट्स ओनली गोना गो अप. दे डोंट डू डिवोर्स यूजली ड्यू टू चिल्ड्रन. अब फर्क नहीं पड़ने वाला. 5 साल रुक, तू कितने, तू 10 बच्चे भी करेगा ना, लोग डिवोर्स करेंगे, फर्क नहीं पड़ता. नॉर्मलाइज हो चुकी है ये चीज़. Not feeling bothered by it is a bigger problem than the men who call me Randi in the first place. Men call women Randi openly on the internet and also in real life because they've learnt it from their parents, from their fathers. They have seen their parents calling their पर ये सही है ना, नहीं या नहीं, ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल है यार. क्योंकि डिवोर्स ना कोई ख़राब चीज़ नहीं होती, लेकिन ज़्यादा डिवोर्सेस होना एक सोसाइटी में वो बहुत ख़राब चीज़ है. डिवोर्स पर से इस क्या कि भाई तुम्हारी मैरिज काम नहीं कर रही है, फिर अब्यूजिव है, तो तुम ऑब्वियसली इट्स नॉट अ बैड थिंग टू गेट आउट ऑफ इट. बट अगर एक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिवोर्स हो रहा है, इसका मतलब है सोसाइटीज़ में रिलेशनशिप्स इन जनरल ख़राब चल रही हैं. मतलब वो सोसाइटी में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड दैट्स अ वेरी बैड थिंग. सो इट्स नॉट अ ब्लैक एंड वाइट थिंग, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. daughters Randi. They have seen their fathers calling their mothers Randi. And mothers also go on to call their daughters this word. I know what your first thought is. How can a mother call her own daughter Randi? They do this as a way to control the daughters on behalf of the fathers. I don't think On behalf of the fathers? Oh, that's an interesting one. Could be true. Could be true. they have seen their को मैं मिस कर दिया इसने पिछले 2 मिनट में क्या यापिंग करी है. and somehow me claiming it as my own was seen as a bad thing. Some people criticized me saying that I'm normalizing the word Randi by saying Randi supremacy. But I can't. I'm not normalizing it. It is already normalized. Every single person who criticized me for calling myself Randi and saying that I'm a proud Randi has internalized misogyny in them. Because I had a look at all of their pages. They've never made a video calling out the men who call women Randi. That's true. जो भी लड़के आर वर्ड बोलते हैं लड़कियों को, दे आर डीपली मिसोजिनिस्टिक. और मुझे कई बार समझ में, मैं सोचता हूँ कई बार कि भाई जो ये लिख के जाते हैं, उनके घर में सच में बहन वगैरह नहीं है क्या, मम्मी वगैरह नहीं है. मतलब तुम सोचो, जस्ट जस्ट सोच के देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है. तुमने कोई लड़की को आर वर्ड बोला, फ़ोन पर टाइप करा, तुम्हारी मम्मी वहाँ से आती और बोलती ये लो पोहा, नाश्ता कर लो. अंदर से कुछ लगता नहीं है? ये कैसे काम करती है दुनिया ये? आई समटाइम्स रियली वंडर, यू नो. तो इट इज़ ट्रू. मतलब यू हैव, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, दे हैव
internalized misogyny. You know, and this is the thing. This is the thing. You know, this is why I fucking, you know, it's so hard to deal with awkward goat. Because इस वीडियो में उसने 80% सेंस बनाया है. 80% अभी तक उसने सेंस बनाया इस वीडियो में. लेकिन तुम्हें awkward गोट नहीं पसंद है, मुझे awkward गोट नहीं पसंद है. तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बस इसको नेगेट करते जाओ. मैं कर सकता हूँ. मैं इसके हर एक सेंटेंस को नेगेट कर सकता हूँ. मैं कुछ ना कुछ इतना लॉजिकल बोल सकता हूँ कि इसका हर एक सेंटेंस फॉल करेगा, बट नहीं करना चाहिए क्योंकि शी इज़ राइट अबाउट दिस. प्रॉब्लम इज विद द होल फकिंग कैंपेन, ये ना सही चीज़ों को सही तरह से बोल के गलत जगह डायरेक्ट करती है. उसको गलत जगह में पकड़ना चाहिए, उन सही जगहों पे नहीं. तो जहाँ पे गलत होगी हम उसको वहाँ पकड़ेंगे. Rundy. But for some reason, they felt the need to make a video on me calling myself Rundy. Apparently, me accepting that I'm a Rundy and not feeling bothered by it is a bigger problem than the men who call me Rundy in the first place. Men call women या Rundy देखा openly देखा on देखा 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 यहाँ पे इसने मिसडायरेक्ट करा फिर से. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट शी सेड? सुनो. apparently me accepting that I'm a Rundy and not सो ये कह रही है कि मैंने जब ये बोला कि आई एम अ प्राउड आर वर्ड, तो बहुत सारे क्रिएटर्स ने मेरे ऊपर वीडियो बनाया और उनको प्रॉब्लम दी कि मैं बोल रही हूँ आई एम अ प्राउड आर वर्ड, इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम होना कि जो लोग ये बोलते हैं उनसे, जो लोग ये कमेंट करते हैं, जो हरास करते हैं, उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको इस बात से कि ये आर वर्ड अपने आप को एक्सेप्ट कर रही है. दिस इज मिसडायरेक्शन. दिस इज कॉल्ड ब्लेटेंट मिसडायरेक्शन. बहुत हद लॉजिकल बात है. कोई भी क्रिएटर स्पेशली इंटेलेक्चुअल स्पीयर में आर वर्ड सपोर्ट नहीं करता. हद लॉजिकल बात है, हद लॉजिकल. बट इसने अपने फॉलोअर्स को पता है सबलिमिनल मैसेज क्या दिया है? जितने लोग भी मेरे खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं उन लड़कों को और इसको पनिश कर रहे हैं ये डिस्कोर्स करने के लिए या फिर ये होलियर देन दाओ चीज़ करने के लिए, या जो भी है. मतलब ये जो भी खतरनाक रेवोल्यूशन ला रही है वो करने के लिए. यहाँ ये करती है ये हरकत. ये है सबसे मैनिपुलेटिव, मतलब अलग लेवल मैनिपुलेटिव है भाई ये औरत. feeling bothered by it is a bigger problem than the men who call me Rundy in the first place. देखा? Men call women Rundy openly on the internet and also in real life because they've learnt it from their parents, from their fathers. They have seen their parents मैं तो रंडी मज़े के लिए बोलता हूँ भाई. ठीक है भाई. मैं कई बार देखता हूँ कि जैसे कुछ स्ट्रीम्स होती हैं मंकी ओमेगल वाली, राइट, कोई स्ट्रीम्स होती हैं तो उस पर लोग जाते हैं मज़े के लिए, ह्यूमर के लिए. वहाँ पे वो आर वर्ड बोलते हैं ह्यूमर के लिए. कोई शायद चाहता नहीं होगा, मतलब चाहते होंगे लोग, इंटरनलाइज मिसोजिनी तो है, बट अब अज्यूम करते हैं क्योंकि आप जब उनको पकड़ोगे ना मुंह से तो वो यही बोलेंगे कि हम तो बस ऐसे ही जोक के लिए बोल रहे थे, मज़े के लिए, वी डोंट मीन इट, जस्ट लाइक वी से कि दैट्स गे एज फक. तो आपको पता है कि नहीं भाई ये बंदा मिसोजिनिस्टिक वे में बोल रहा था, उसको मज़े के लिए नहीं बोल रहा था, लेकिन आप प्रूव नहीं कर सकते. तो मेरे पास एक तरीका है जिससे आप प्रूव कर सकते हो. बड़ा सिंपल जवाब है. बड़ा सिंपल जवाब नहीं, बड़ा सिंपल सवाल है. बस थॉट एक्सपेरिमेंट है. उनसे पूछ के देखना जो लोग ना ये मंकी स्ट्रीम्स पे जाके आर वर्ड लगते हैं ना, उनसे पूछ के देखना. बड़ी सिंपल सा सवाल है. कल को तेरा फेवरेट स्ट्रीमर गलती से तेरी बहन के साथ आ गया या तेरी मम्मी के साथ आ गया मंकी चैट पे, तो तू बैठ के एंजॉय करेगा? क्योंकि अगर जयेश मेरी बहन से बात करा मंकी पे, मैं तो एंजॉय करूँगा, मुझे दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो ये सब कभी नहीं बोलेगा, मुझे पता है वो इज्जत से बात करेगा. बट अगर तेरा फेवरेट स्ट्रीमर, जिसको तू फेवरेट स्ट्रीमर बोलता है, जो तू कहता है तेरा डिप्रेशन दूर कर रहा है, अगर तेरी बहन से उसने बात करी, मैं तो ये भी नहीं बोल रहा उसने क्या बात करी, मैं बस इतना बोल रहा हूँ बात करी, तो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं नहीं कह रहा कि वो उसको आर वर्ड बुला रहा है, कुछ गंदा बोल रहा है. मैं कह रहा हूँ उससे सिर्फ बात करी लाइव स्ट्रीम पे. जिस लाइव स्ट्रीम पे तू बैठा है ना दोस्त, उसी लाइव स्ट्रीम पे तेरी मम्मी या तेरी बहन बैठी है और वो उससे सिर्फ बात कर रहा है. क्या तू एंजॉय करेगा? क्या तू एंजॉय करेगा? सिंपल जवाब है. और अगर तेरी फट रही है ना ये सोच के ही, तेरे को घिन आ रही है सोच के ही, तो तेरे को खुद से घिन आनी चाहिए. तेरे को खुद से घिन आनी चाहिए भाई. ठीक है? क्योंकि ये जो आधे स्ट्रीमर जो ये हरकत करते हैं ना, मैं उनको अपनी बहन तो छोड़ो, अपनी किसी कॉलेज के जूनियर के साथ भी ना छोड़ूं. इसलिए नहीं कि मेरे को ऐसा लगता है कि वो कुछ कर देंगे, बट इसलिए क्योंकि उनका दिमाग इतना गंदा हो चुका है ना भाई एक चीज़ रिपीट करने से, कि आई वोंट फील कंफर्टेबल डूइंग दैट शिट. और मैं नहीं कह रहा कि मेरा दिमाग बहुत अच्छा है,
लेकिन मैं वो चीज़ दिन में 100 बार नहीं करता हूँ। तुम में से पता है बहुत सारे ऐसे स्ट्रीमर्स हैं जो ये कर रहे हैं क्योंकि इस पे व्यूज़ आते हैं, बट वो एक दिन में 50,000 बार बोल रहे हैं वो शब्द भाई। एट दैट पॉइंट इवन इफ यू डोंट बिलीव इन इट यू विल स्टार्ट गेटिंग यूज टू इट। तुम्हें हैबिचुअल आदत बन जाएगी भाई। तुम दिन में 500 बार बोल रहे हो वो सुपर चैट के लिए, क्योंकि तुम जब जब वो बोलते हो तुम्हारी चैट खुश होती है। तो तुम अगर वैसे हो भी नहीं, तो तुम अगर ये चीज़ 3 महीने लगातार कर रहे हो तो तुम्हारी क्या हालत होगी भाई? क्या हालत होगी तुम्हारी? मैं नहीं छोड़ रहा तुम्हें किसी लड़की के साथ, यू नो, दैट्स हाउ आई लुक एट इट। calling their daughters Randi. They have seen their fathers calling their mothers Randi. And mothers also go on to call their daughters this word. I know what your first thought is. How can a mother call her own daughter Randi? They do this as a way to control the daughters on behalf of the fathers. I don't think we should feel any worse that a mother is calling her daughter this. In fact, we should have some empathy for the mothers because they are themselves being called this word. The mothers are also तो रैगिंग क्राइम क्यों है? तो रैगिंग क्राइम क्यों है? If we should have empathy for mothers because mothers are being called this word and therefore mothers are calling them that word to their daughters, तो कॉलेज में जो रैगिंग होती है वो एक क्राइम क्यों है? उनकी भी तो रैगिंग ही होती है। सेकेंड ईयर की रैगिंग थर्ड वाले करते हैं, इसलिए जब वो सेकेंड ईयर में जाते हैं तो वो फर्स्ट ईयर वालों की करते हैं। जिनकी रैगिंग होती है वही तो रैगिंग करते हैं। तो क्राइम क्यों है? बिकॉज इट इंक्लूड्स फिजिकल टॉर्चर। ना बेटे, तू अगर रात के 10 बजे किसी जूनियर को अपने रूम में भी बुलाएगा ना, जेल पे जाएगा तू। यू डोंट नो व्हाट रैगिंग इज, रीड अबाउट इट। इट डजंट हैव टू बी फिजिकल। एंड वो एक पैरेलल एग्जाम्पल है यार, उसमें तो इतना घुसना भी नहीं चाहिए, बट तू घुस गया तो भी गलत है, जस्ट सो यू नो। victims stuck in an abusive cycle. The MKC, BKLT, MKC are all bad words. That they are bad words. Just because they are used in a slang or a linguistic manner apart from abusing, that doesn't mean that they are good words. इसका बस ये मतलब है कि हाँ उसका एक ऐसा मीनिंग एक्सेप्टेबल है जिसको लोग दिल पे नहीं लेते। जैसे मैं चूतिया बहुत बोलता हूँ, टेक्निकली खराब शब्द है। जस्ट बिकॉज मैं चूतिया बहुत बोलता हूँ कोई ऑफेंड नहीं होता, सब हंस सकते हैं। मैं अपनी फैमिली के सामने भी बोलता हूँ चूतिया, इसका ये मतलब नहीं वो अच्छा शब्द है। इसका बस ये मतलब है कि उसका एक ऐसा मीनिंग है जो सोशली एक्सेप्टेबल है एट दिस पॉइंट। बट अगर तुम ऐसे इंसान हो जो ना बहुत ही अच्छा अपने आप को पोर्ट्रे करता है, तो तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि तुम वो भी ना बोलो, क्योंकि यू कैन से थिंग्स विदाउट सेइंग दैट, राइट? तो शब्द अच्छा या बुरा नहीं हो जाता कम गिवन कि वो कितना एक्सेप्टेबल है या कितना नहीं है। शब्द शब्द ही रहता है, जो उसका ओरिजिनल मीनिंग है वो ओरिजिनल मीनिंग वैसा ही रहता है, ठीक है? तो बहनचोद जो है, ऐसे शब्द जो हैं जो हम कैजुअली बोलते हैं वो शब्द खराब ही हैं। वो बेटर बेटर नहीं हो जाते जस्ट बिकॉज दे आर अ स्लैंग। लेकिन अगर आप अंडरस्टैंड करते हो उस स्लैंग को, आप अंडरस्टैंड करते हो, आप पार्टिसिपेट करते हो, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी नहीं है, आपको पार्टिसिपेट भी करना पड़ता है। जैसे कभी भी तो जो लोग BC बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना एक दूसरे को, जो दोस्त लोग होते हैं, वो उससे ऑफेंड क्यों नहीं होते? क्योंकि वो खुद बोलते हैं, वो पार्टिसिपेटर भी हैं, वो पार्टिसिपेंट भी हैं उस चीज़ में। अगर जो इंसान खुद नहीं बोलता ना ये, और लेकिन वो जानता है कि दिल्ली में लोग ये बहुत कैजुअली बोलते हैं, उसको तो बोलेगा, वो ऑफेंड हो जाएगा क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं करता। समझ रहा है? ये वैसी बात है। तो जो लोग खुद बोलते हैं और जो पार्टिसिपेट करता है उनके लिए ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग बोलते नहीं हैं लेकिन उनको पता है, लेकिन तू उनको नहीं बोल सकता बिकॉज वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो उनके लिए वो शब्द खराब है और वो तुम्हारे लिए भी खराब होना चाहिए फिर। एज सिंपल एज दैट, ठीक है? The world hates women very easily, but they seem to give a free pass to the men. So please do not hate on them. Can you imagine what would happen to these mothers if they try to go against the men of the house? If they are being called Randi by their husbands, it would actually be unsafe for them. So have empathy for the mothers and have anger for the fathers. Okay, see? That's how you misdirect. That's how you missed. She literally just safeguarded all mothers right there. तुमको पता है एक और चीज़ बताता हूँ मैं। आई डोंट गिव अ फक भाई, आई डोंट गिव अ फक भाई कौन मेरे को आके क्या बोल दे। तुमको पता है इन अ लॉट ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स जो पापा होते हैं, जो मेल आदमी होता है, इवन अब्यूजिव हाउस होल्ड्स की बात बता रहा हूँ, दे आर हेजिटेंट
of touching their daughters, even when they are angry. They're hesitant about touching their daughters even when they're angry. तो उनको अगर कोई मारता है ना तो उसकी मम्मी मारती है, बट पापा नहीं. लड़कियों को अगर कोई पीटता है ना तो मम्मी पीटती है, पापा नहीं. फैक्ट बता रहा हूँ तुमको. 100 लड़कियों से जाके पूछो यही सही सवाल, कम से कम 80 अग्री करेंगी मुझसे. पापा अगर लड़की से कितना भी डिसअपॉइंटेड है, दे आर वेरी वेरी हेजिटेंट ऑफ टचिंग देम, वेरी हेजिटेंट. ठीक है, तो ये सीन होता है. तो यहाँ पे ये क्या बोल रही है, पुट लिटरली शी इज सेइंग पुट ऑल द ब्लेम ऑन द फादर, विच इज नॉट इवन ट्रू. नॉट इवन ट्रू. मोस्ट ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड जहाँ पे लड़कियाँ कंट्रोल भी करी जाती है, वहाँ पे भी लड़कियों की इज्जत तो नहीं करेंगे उसको, बट देयर द फादर, द मेल फिगर यूजुअली रिफ्रेन्स फ्रॉम हैविंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विद women, especially his own daughter. There is hesitancy. अब उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, सेक्शुअल एलिमेंट भी है उसमें, बट द थिंग इज कि इट इज़ ट्रू. लेकिन वो उसने 1 सेकंड में वो वाइप आउट कर दिया. वो 1 सेकंड में उसने आपको 5 मिनट बहुत लॉजिकल चीज़ बताई, और वो 5 सेकंड में उसने पूरा गेम पलट दिया. ये करती है ऑकवर्ड गोट. Because the fathers are not victims, they are not being called Randi ever. For mothers, it is a way to मुझे तो मारा था पापा ने. तुम लड़कियों की नहीं, लड़कियों मुझे नहीं पता, बट अगर तुम लड़की भी हो तो भी वही मैं कह रहा हूँ कि अगर 10 लड़कियाँ पिटती हैं घर में, तो मैं कहूँगा कि 2 के पापा डायरेक्टली मारते होंगे और 8 की मम्मी मारती होंगी. मतलब पापा यूजुअली नहीं मारते. दैट्स बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस. अब लोगों को लगेगा कि भाई तू तो लड़का है, बट whatever, बहुत लंबा लो रहा है तो मैं नहीं पता. protect themselves, and for fathers, it is a way to control the women. It is a different thing. Please understand that. To these mothers, if they try to go against the men of the house, if they are being called Randi by their husbands, it would actually be unsafe for them. So have empathy for the mothers and have anger for the fathers, because the fathers are not victims. They are not being called Randi ever. For mothers, it is a way to protect themselves, and for fathers, it is a way to control the women. It is a different thing. Please understand that. You have to see both genders differently because they're not the same. The men are the oppressors and the women are the victims. बस मैं क्या ही बोलूँ, मैं क्या ही बोलूँ. अब मुझे ये समझाना पड़े कि इसमें क्या गलत है, तब तो फिर Words don't just become popular out of thin air. They get popular because it means that everyone is using them. If you see a lot of boys using this word, it's because they're learning it from their parents. It all starts at home, because it is a way to protect the stressors, because it means that everyone are parents. If you see a lot of boys using this word, it's because they're learning it from यार एक ये दिक्कत भी तो है यार इंडिया में. होता है देयर इज दिस वन अदर प्रॉब्लम यार. इंडिया की इंसल प्रॉब्लम पे ना लोग बात नहीं कर रहे हैं एक्चुअली. इंडिया की इंसल प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई. दिस इज़ सो फकिंग रियल कि भाई लड़कों के लिए ना हर वो लड़की एक आर वर्ड है जो उनको पता है फॉर अ फैक्ट कि उनको देखेंगी भी नहीं. अगर आप एक स्ट्रेट मेल हो और आपको कोई लड़की पसंद है और आपको पता है कि वो आपको पलट के भी नहीं देखेगी, तो आपके कोपिंग का तरीका सिर्फ एक है कि आप उसको आर वर्ड बोलो दिन में 10 बार, और ख़ुद को कन्विंस कर लो कि यार ये लड़की तो सबसे घटिया नीच कैरेक्टरलेस लड़की है, इसलिए मुझे तो पसंद नहीं आनी चाहिए उसको तो. और जो लड़की इसके साथ है वो, क्योंकि भाई अगर तुमने उस लड़की को एक्सेप्ट कर लिया ना कि वो लड़की अच्छी है, तो मतलब तुम ये एक्सेप्ट करो कि तुम चूतिया हो, और तुम वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. तो तुमने ये रियलिटी हटाने के लिए तुमने क्या कर दिया, वो लड़की आर वर्ड है और जो लड़की उसके साथ है वो इतने नीच है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लड़की आर वर्ड है, तो वो भी मुझसे नीचे है. तो लड़की तो मुझसे नीचे है ही है, वो लड़के भी मुझसे नीचे है. और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है भाई.
ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। जब मैं स्कूल में था, जब मैं 8th क्लास में था, 6 महीने के लिए मैं भी उन लड़कों में से एक बन गया था। जहाँ पे मेरे 5 अगर दोस्त थे स्कूल में, मुझे कोई समझ नहीं थी स्कूल में, कोई समझ नहीं थी। मैं उस वक्त आई वॉज वेरी यंग ऑल्सो, आई वॉज प्रॉब्ली लाइक 10 years old when I was in 8th क्लास। नहीं, नॉट 10, 11 और 11, 11-12 साल का था जब मैं 8th क्लास में था। तो 11, प्रॉब्ली 11.5, ठीक है। हाँ, आई वॉज डेफिनेटली 11.5, 13 नहीं, 11.5। तो मैं बहुत यंग था। मेरी क्लास में मोस्ट ऑफ द लोग 13 या 14 साल के थे, और मैं 11.5 साल का था। जब मैं 15 साल का था, मैं 12th में था, 15.5 साल पे। तो मैं बहुत ही यंग था, तो मैं बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता था। तो मेरे आजू बाजू लोग यही करते थे कि यार ये लड़की तो ऐसी है, ये लड़की तो वो है। और यूजुअली पता है सबसे ज़्यादा कौन सुनती थी? सबसे ज़्यादा पता है आर वर्ड किसको बोलते थे? सबसे सुंदर लड़कियों को। फैक्ट है ये। जितनी सुंदर और कन्वेंशनली अट्रैक्टिव लड़की होगी, या जितनी डिमांड्स कोट एंड कोट उस लड़की की होती, उतना उसको आर वर्ड बोला जाएगा। किसी अगली लड़की जिसको कोई नहीं देखता, उसको कोई आर वर्ड नहीं बोलेगा। जितनी सुंदर लड़की, उसको उतना ज़्यादा आर वर्ड। कोपिंग मैकेनिज्म है इंसल्ट्स का। और मैं भी उनमें से एक लड़का था एक वक्त पे। मैंने कभी किसी को ज़िंदगी में ऐसा बोला नहीं है, ठीक है। खुश हूँ मैं, लेकिन आई वॉज वेरी अशीम्ड व्हेन आई ग्रू अप, लाइक आई वाज 17 और समथिंग, एंड आई रियलाइज्ड कि फक। लेकिन जब वो लोग बोलते थे, तो मैं कभी डिसएग्री नहीं करता था, मैं इनडायरेक्टली एग्री करता था कि हाँ भाई। मैंने खुद से बोला नहीं है, बट मैंने इनडायरेक्टली एग्री करा, और मैंने बहुत करा। 6 महीने, 6-7 महीने ही करा है मैंने ये, बट बहुत करा है। तो मुझे पता है हाउ इट अफेक्ट्स people, and it's a huge problem, it's a very bad problem. from their parents. It all starts at home and the way we are brought up. By the way, little सब हंसते थे, वही वही हंसना ही, वही हंसता, वही बोल रहा हूँ एग्जैक्टली। तूने सही पकड़ा है। अग्री मतलब इन द सेंस कि वो बोलते तो जोक में ही थे, मतलब हंसते थे वो। तो तुम्हें भी हंसना पड़ता था, तुम्हें लगता था कूल है ये, मतलब यही है। व्हाट्स योर सोल्यूशन टू दिस? ब्रो, आई विल हैव टू थिंक अबाउट सोल्यूशन यार। अब ऐसे दिमाग पे तो नहीं बोल सकता, बट आई, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम मैन। एंड इट्स इवन मोर प्रॉब्लमेटिक कि कोई इंसान बात नहीं करता इन चीज़ों के बारे में, यू नो। उसमें कूल क्या है भाई? जब तुम 8वीं क्लास में होता ना, तो तुम, कोई कूल चीज़ कूल होती नहीं है, तुम्हें बस लगती है कूल है। कुछ भी रैंडम कूल हो जाता है भाई, यू डोंट नो। young boys are never called this word when they're growing up. They are given full freedom. They're encouraged to become independent. Little girls, on the other hand, are caged. And if they try to break free, they're called a Randi. Fathers, brothers, and sons are not called Randi. Mothers, sisters, and daughters are called Randi. And Yeah, but why would they? that's why there is a difference between the mothers and the fathers calling their children Randi. I am not normalizing the word Randi. I am not saying that it's okay to call women Randi. It's already seen as okay to call them that. I'm just calling it out and saying no. I refuse to feel bad Not a cultural issue. This happens in Europe and America also. That is true. That is true. Very true. about being called Randi. I refuse to be silenced. I know me calling myself a proud Randi and saying Randi supremacy makes you uncomfortable. And I know why. Because I don't look like a perfect victim anymore. An ashamed, scared woman. I'm not ashamed. Why would I be ashamed of calling myself some word that the society already thinks I am? They called me Randi. Okay, I'm a Randi. I don't mind. See, this is where she plays. This is why problem with her. तुमने सुना इसने क्या बोला? तुम में से 99% लोगों ने कैच नहीं करा इसने क्या बोला। इसने कहाँ खेला भी पता तुम्हें? कहाँ खेल दिया इसने? बहुत खतरनाक खेल दिया इसने, बहुत खतरनाक खेला इसने, बहुत खतरनाक। मैं वेट कर रहा हूँ, बताओ उसने क्या खेला, बताओ। लेट्स सी हाउ स्मार्ट यू आर। इसने एक सेंटेंस बोला, उस सेंटेंस में उसने एक शब्द बोला जिसने पूरा गेम पलट दिया। वो पता है क्या शब्द था? बताओ मुझे। तुम नहीं बता पाओगे। शी सेड आईजीसी नहीं।
मैं तुम्हें फिर से सुनाता हूँ, सुनो क्या बोला इसने. Calling myself a proud Randi and saying Randi supremacy makes you uncomfortable. And I know why. Because I don't look like a perfect victim anymore. सुनो. An ashamed, scared woman. I'm not ashamed. Why would I be ashamed of calling myself some word that the society already thinks I am? They called me Randi. Okay, I'm a Randi. सुना इसने क्या बोला. इसमें इसने खेल दिया, बहुत खतरनाक खेला. सोसाइटी, दो लोगों ने बोल दिया यस इट इज़ सोसाइटी, दैट इज़ द वर्ड. जहाँ पे इसने खेल दिया, जहाँ पे इसने खेल दिया, बहुत गंदा खेला, बहुत गंदा खेल दिया इसने. सोसाइटी नेवर कॉल्ड हर रंडी एवर. इट्स अ बंच ऑफ इंसल्ट्स, अ बंच ऑफ हेटर्स. Society has never called you that. Society is made up of you, me, your friends, and those people also. They are a minority, they're not the majority. They're kids, they are fucking six incels. They are like borderline criminals. They are like disgusting people. वो society नहीं है. That's not society. ठीक है? अगर 100 लोग हैं सोसाइटी में, तो those people are like probably 15 out of 100. और जैसी आपकी हरकतें, आपको 50 लोग गाली बकेंगे वैसे तो, बट आर वर्ड नहीं बोलेंगे, चूतिया बोलेंगे, जैसा मैं हूं उनमें से. तो आप कह सकते हो सोसाइटी आपको चूतिया समझता है, बट आर वर्ड सोसाइटी नहीं बोल रही आपको, लेकिन आपने सोसाइटी बना दिया उनको. आपके पूरी वीडियो में जो लोग आपको गंदी चीज़ें बोलते हैं, गालियाँ बकते हैं, हरास करते हैं, वो एक गंदी माइनॉरिटी है. लेकिन जहाँ पे आरवर्ड सुप्रीमेसी की बात आती है, वो सोसाइटी बन जाते हैं. क्योंकि आपको इनडायरेक्टली 15 साल की बच्चे को बताना है कि सोसाइटी ये बोल रही है, तो सोसाइटी के अगेंस्ट, मतलब वो तो रेबल किड टाइप का है कि भाई सोसाइटी के अगेंस्ट जाना है, हम एक मूवमेंट कर रहे हैं, हम एक कल्चरल मूवमेंट कर रहे हैं, तो सोसाइटी के अगेंस्ट जाना है. तो सोसाइटी को एक सेकंड में विलनाइज कर दिया इसने कि सोसाइटी ऐसी है जो मुझे आरवर्ड बोल रही है. सोसाइटी ने तुम्हें कभी आरवर्ड नहीं बोला. सोसाइटी ने तुम्हें कभी आरवर्ड नहीं बोला दोस्त. जो लड़के तुम्हें सपोर्ट कर रही है ना, वो भी सोसाइटी ही है. जो लड़के तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं वो भी सोसाइटी है. जो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स हैं वो सोसाइटी है. The fuck is going on with you? People call you that repeatedly. It loses its meaning. It genuinely does not feel anything to me anymore. It I don't think a word, if it's called very repeatedly, it will lose its meaning. I don't think that's true. एग्जाम्पल देता हूँ आपको. जो बच्चे स्कूल में बुली होते हैं, जिनका एक गंदा निकनेम होता है, जैसे जब मैं स्कूल में था, यार मुझे कोई गंदा निकनेम याद नहीं आ रहा किसी का. जैसे आई एम सॉरी बट एक मुस्लिम लड़का था मेरे स्कूल में, उसको कटुआ बोलते थे. ठीक है? उसको कटुआ कितनी बार बोला होगा? प्रॉब्ली 12 साल में 1000 बार. 1000 बार बोला होगा. डू यू थिंक इट लॉस्ट इट्स मीनिंग? नो, इट डिड नॉट. It did not. We had to grow up. All of us had to grow up. Even that guy grew up. And हमारे कॉन्शियस चेंजेस आए कि भाई ये बहुत गंदी बात है जो हम करते हैं. तो हमने इवेंचुअली स्टॉप कर दिया. हमने, मतलब आई वॉज नॉट अ ह्यूज पार्टिसिपेंट ऑन इट, बट अगेन आई वॉज अ यंग किड, सो आई एम एडमिटिंग माई मिस्टेक. बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इट डज नॉट टेक अवे फ्रॉम द मीनिंग. इट नेवर डज. इट नेवर डज. आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप कर दूँ, ये देखो साला. एक तो मैं, मेरा चैनल बंद होने वाला है, कॉपीराइट स्ट्राइक आने वाली मेरे को, तुम और कैंसिल करवा दो मेरे को. doesn't hold any pain or hurt. एक व्हील चेयर पे होता था लंगड़ा हमारे स्कूल में, उसको कछुआ बुलाते थे. ये देख लो, वही बात है. इट डज नॉट. भाई मैंने आज तक नहीं देखा किसी को आप हरास करने के लिए कोई शब्द बोल रहे हो और उसको अगर आपने 100 बार ये बोल दिया तो वो इट लूजेस इट्स मीनिंग. नो, इट डज नॉट एवर हैपन. आई हैव नेवर सीन दैट हैपन. It genuinely does not feel anything to me anymore. It doesn't hold any pain or hurt. Because what else can I even do apart from this? Feel bad? Look at the hate comments every single day calling me Randi and stop making videos eventually, let them silence me? I refuse to be silenced and I also refuse to ignore it because ignoring it is supporting it. My followers were called this word by their parents when they shared that they got molested. It. My followers were called this word by their parents when they shared that they ओके, आई एम अबाउट टू से समथिंग वेरी क्रेजी. क्योंकि रात के 1:15 हो रहे हैं. रात के 1:15 हो रहे हैं.
दिसंबर का महीना आने वाला है, ये सब देख के मुझे बुरा लगता है, तो मैं कुछ बहुत ही क्रेज़ी बोलने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा क्रेज़ी। और मुझे इस पर क्वेश्चन मत करना कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना, बस क्वेश्चन मत करना। यहाँ पे कोई डिस्कोर्स नहीं हो रहा, मैं तुम्हें एक ऐसा ज्ञान देने वाला हूँ जो ओशो लेवल ज्ञान है, ओशो लेवल ज्ञान है। बस मुझसे क्लैरिफिकेशन मत मांगियो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ और कहाँ से मेरे पास ये ज्ञान आया, मुझे कहाँ से सिद्धि प्राप्त हुई। A lot of mothers, a lot of mothers who call their daughters R word in these certain situations call it out of their own spite and arguably jealousy. बहुत सारी मैरिज में स्टक विमेन जो टॉक्सिक मैरिजेस में स्टक है या अनविलिंग मैरिजेस में स्टक है, जिनका फोर्सफुली बच्चे होते हैं, जिनके क्योंकि मैरिज में और कोई ऑप्शन नहीं होता, जिनकी शादी ख़राब होती है, उनको पति पसंद नहीं है, कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड है, दिन में बंद रहती है घर में क्योंकि नौकरी भी पति करते हैं, वो नहीं करते, दुनिया भर की चीज़ें हैं, उनको अपनी बेटियों से बहुत जेलसी होती है, बहुत जेलसी, क्योंकि उनकी बेटियों को ये सब फेस नहीं करना पड़ता और वो उनके सामने बड़ी हो रही हैं, वो दिन में 12 घंटे बाहर जा रही हैं, अच्छे कपड़े पहन रही हैं, दोस्त बना रही हैं, मौज मस्ती कर रही हैं, और उनको बिल्कुल जेलसी नहीं होती। और उन पर सोसाइटल एक प्रेशर होता है, उन पर सोसाइटल प्रेशर होता है कि क्योंकि अब वो 50 साल या 40 साल की हैं, अपनी बेटी पे थोड़ी ना वो डालेंगी वो कि तेरा बाप मेरे को ये बोलता है, मेरे साथ ये दर्द बांट मेरा, वो बोल नहीं सकती, वो अपना ये दुख शेयर नहीं कर सकती डायरेक्टली क्योंकि वो बच्ची है। अगर वो बच्ची को फोर्सफुली उस ट्रॉमा में घसीट के लेके आ रही हैं तो वो और खुद को हेट करेगी, और वो उनको ये भी नहीं पता कि इस फ्रस्ट्रेशन को बाहर कैसे निकाला जाए, और वो जेलेसी बस पनपते जाती है अंदर, और वो एक तरफ से वो ऑप्रेस हो रही हैं, एक तरफ से वो अब्यूज़ हो रही है मेंटली फिजिकली, दूसरी तरफ उनकी बच्ची मौज कर रही है, तो वो निकलता इस तरीके में, वो निकलता इस तरीके में। इसलिए आप नोटिस करोगे कि जितनी भी ऐसी औरतें होती हैं या इवन मर्द होते हैं जो अपने बच्चों पे ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, जैसे जैसे वो बुढ़े होते हैं ना, वैसे वैसे ही अब्यूज़ ख़त्म होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप बुढ़े होते हो वैसे वैसे आपकी फ्रस्ट्रेशन दूर जाती है, आपकी वाइसेस डिज़ायर्स कम होते रहती हैं, एंड दैट इज़ आपका एग्रेशन कम होते रहता है। दैट इज़ द रीज़न वाई जब ये एज में बड़े होते हैं तो ये सब नहीं करते, देयर इज़ अ रीज़न वाई ये नहीं करते, ठीक है। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मैंने ज़िंदगी में एक साइकोलॉजी की किताब नहीं पढ़ी है, ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझसे पूछने मत मुझे कैसे पता है ये सब, क्योंकि मैंने कम से कम 1,500 लोगों से बात करी है लाइफ में, और मैंने बहुत ऐसी बातें करी जो तुमने सोच भी नहीं सकते। तो मुझे नस नस पता है सोसाइटी की, मुझे अमीरों को भी नस नस पता है, मुझे गरीबों की भी नस नस पता है, ठीक है। भतेरे रेप विक्टिम्स मेरे सामने बैठ के मुझे अपनी आप बीती सुना चुके हैं, और ये सब बहुत यंग हो चुका है, जब मैं बस फकिंग 18-19, जब मैं कॉलेज में था, जब मैं सेमिनार्स में जाता था, तो मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं। तो ये जो है ना, दिस इज़ वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, समथिंग जो तुम्हें आइडिया भी नहीं है कितनी प्रॉब्लमेटिक है। वो पता है क्या है, एक ऐसी चीज़ जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है इंडिया में स्पेशली, और ये तुम्हें कोई क्रिएटर आज तक तुमने जितने भी, मैं तुम्हें लिख दे देता हूँ, तुमने दुनिया में जितने भी बड़े इंटेलेक्चुअल स्ट्रीमर्स देखे हैं इंडिया में, जितने पैदा हुए हैं, तुम्हारे श्वेताब हो गया चाहे प्रखर हो गया, उन्होंने आज तक ये बात नहीं बताई होगी तुमको। इंडिया में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम पता है क्या है, वो प्रॉब्लम है जॉइंट फैमिली प्रॉब्लम। तुमको आइडिया नहीं है, एक फैमिली अगर जॉइंट फैमिली है तो अब्यूज़ कितना इंस्टेंटली ऊपर जाता है। जस्ट अगर आपकी फैमिली न्यूक्लियर है ना, आपके चांसेस अब्यूजिव होने के ना, मैं कहूँगा 90% घट जाते हैं, होते सब फिर भी हैं डिफरेंट रीज़न से, बट अगर खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली, ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली, आपके लौड़े लग चुके हैं, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की, आपके लग चुके हैं, बहुत गंदे वाले लग चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे ना ट्रॉमा एक कोरोना वायरस जैसे फैलता है भाई,
हाथों हाथ पासिंग द पार्सल जैसे लिया जाता है भाई। गलती से अगर आप भी अच्छे मूड में उठे हो ना, आपके घर में 12 लोग और हैं और किसी और का मूड खराब है, आज आपके लौड़े लग गए अच्छे दिन के। और जॉइंट फैमिली सिस्टम के कारण इतनी ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं जितना आपको आइडिया नहीं है। ऐसी लड़कियां हैं भाई, ऐसे लड़के हैं जिनको कॉलेजेस जिनके डिसाइड करने के लिए ना पापा नहीं बाहर भेज सकते, क्योंकि भाई चाचा और मामा मना कर रहे हैं, दादा मना कर रहे हैं, चाचा मना कर रहे हैं, तो बच्चा बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि 2-3 मर्द है घर में और 2 मना कर रहे हैं, और एक जो तुम्हारा असली बाप है वो तुम्हें अकेले दम पे भेज ही नहीं पा रहा बाहर, क्योंकि उसकी अथॉरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है उस घर में। और अगर आप लड़की हो तब तो आपके लग ही गए हैं भाई, आपके लग ही चुके हैं, क्योंकि अगर घर में दादी हैं तो दादी की केयर कौन करेगा? आपकी सबसे बेटी, आपकी बेटी केयर करेगी, और कोई तो करेगा नहीं। लग गए आपके, लग गए आपके, आप कुछ नहीं कर सकते, बंद रहो घर में। आपका भाई तो बाहर पढ़ने चला जाएगा, आप नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि घर कौन संभालेगा? मम्मी बीमार हो गई, दादी बीमार हो गई, दादा बीमार हो गए, घर कौन संभालेगा? आपको संभालना पड़ेगा। तो आपके भैया जी जा रहे हैं पढ़ाई करने, आपको अपने अपने शहर में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर रोहतक की हो मान लो, अगर आप रोहतक की हैं, आपका भाई दिल्ली जा सकता है, आप नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि यह जॉइंट फैमिली है। अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली होती तो शायद चांसेस होते हैं, शायद चांसेस होते हैं, मे बी इवन 80-90% चांसेस होते हैं कि आपका भाई जहाँ जा रहा है आप भी वहाँ पे जा सको, जस्ट बिकॉज इट्स अ जॉइंट फैमिली। 50 लोग आपकी उंगलियाँ करेंगे आप हर चीज़ में। और जेलेसी इतनी होती है जॉइंट फैमिलीज़ में, जेलेसी, इनहेरेंट जेलेसी इतनी होती है। अगर उनको लगता है कि अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आप उससे बड़े हो जाए, आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, और दबाएंगे आपको, और दबाएंगे आपको, फिर तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे, फिर तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे आपको बाहर। ठीक है, तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये जो इसने 1 सेकंड में इसको बस, इसने मदर्स को ना 1 सेकंड में एक्यूएट कर दिया उन 15 साल के इमेच्योर बच्चों से। और ये साइकोलॉजिस्ट कहती है खुद को। इसको घंटा नहीं पता सोसाइटीज़ के बारे में, इसको घंटा नहीं पता इंडिया के बारे में। इट्स शेमफुल कि दिस इज़ इंडियाज़ मोस्ट फॉलोड थेरेपिस्ट स्लैश साइकोलॉजिस्ट। शेमफुल बात है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में एक शब्द नहीं पढ़ा साइकोलॉजी की किताब का, और मैं मूत देता हूँ भाई ऐसे साइकोलॉजिस्ट पे। यंगदास यहाँ पे बैठा है, यंगदास को शायद याद होगा, क्लब हाउस याद है तुम लोग को? ऐप क्लब हाउस एक ऐप हुआ करता था, एक लाइव डिबेट हुई थी मेरी, 40 साइकोलॉजिस्ट बैठे थे उस पैनल में। रुला दिया था मैंने उनको, रुला दिया था मैंने उनको। उस वक्त पता है क्लब हाउस में क्या होता था? डॉक्टर लोग अपना पैनल बना के बैठे हैं, साइकोलॉजिस्ट अपना पैनल, पॉलिटिकल वाले अपना पैनल बना के बैठे हैं, सब डिस्कशंस कर रहे हैं। साइकोलॉजी वाले पैनल बैठे थे, रुला दिया था भाई। और ये सबके पास डिग्री है भाई, साइकोलॉजी में तो ऐसे डिग्री बांट रहे हैं ये लोग, पता नहीं क्या सोच के डिग्री बांट रहे हैं भाई। इनका तो इवैल्यूएशन होना चाहिए भाई, इनको साइकोलॉजी का पी पता नहीं, और डिग्री मिल जाती है। लेकिन मैं एक साइकोलॉजिस्ट वुमेन से बात कर रहा था दिल्ली अमेठी में, उनको 9.5 जीपीए मिल रहा है, 10 जीपीए मिल रहा है भाई। 9.5 10 जीपीए, तुम्हें पता है कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और साइकोलॉजी से जैसे सब्जेक्ट में अगर तुम्हें 9.5 जीपीए मिल रहा है अंडरग्राउंड में, तो मैं अज्यूम करूँगा कि तुम तो भाई फ्रॉइड तो तुम छोड़ो, मतलब तुम डायग्राम सहित मुझे लकान एक्सप्लेन कर पाओगी। और रियलिटी पता है क्या है? उनको फ्रॉइड के बारे में ही नहीं पता कुछ, उनको यंग यही नहीं पता कि यंग पागल इंसान हो गया था मरते मरते। उनको यंग उतना ही पता है जितना किताब में लिखा है, उनको फ्रॉइड उतना ही पता है जितना किताब में लिखा है। उनको ये नहीं पता कि दोनों पागल हैं। जिन लोगों के बारे में पढ़ रही हैं वो पागल हो चुके हैं, उनको यही नहीं पता। जिस भैया जी ने आपकी साइकोलॉजी बनाई है उनको भूत दिख रहे हैं सपनों में, मेंटली डिरेंज्ड हो चुके हैं, कुछ नहीं पता। और ये चीज़ें पता क्यों होनी चाहिए? क्योंकि फिर तो आप जाके थोड़ी क्यूरोसिटी होगी कि भाई मैं कि ये इस पर भरोसा क्यों करूँ जब मैं पढ़ रही हूँ, मैं थोड़ा अपना भी तो एक्सपेरिमेंट करके देखूँ। जिन लोगों ने ये बातें कही, अगर वो पागल हो चुके हैं तो मुझे भी तो थोड़ा सा करना चाहिए। जंग पागल था ये पता नहीं था मुझे, जंग नहीं यंग, मैंने जंग क्यों पढ़ा? तो यंग पागल हुआ था बाद में, मतलब इट्स नॉट, आई कैन नॉट से वो पागल हो गया था, बट मैं उसको पागलपना कहता हूँ। जब उसको विजन्स आ रहे थे, थॉट्स आ रहे थे, जब बुढ़ा हो गया था, जब उसने रेड बुक लिखी थी, पढ़ना कभी रेड बुक के आजू बाजू यंग के साथ क्या हुआ था, बट मैं उसको पागलपन कहता हूँ। तो बट हाँ,
they got molested. Apparently, being someone who is molested makes you a rundy. They were called this word for not keeping the cups in the sink, for talking to boys, for wearing. They were called this word for not keeping the cups in the sink, for talking to boys, for wearing makeup, for wearing jeans. For wearing makeup, wearing jeans, पता है क्यों? Because the mothers want to live it but cannot live it. Jealousy, envy, frustration, trauma, all of it channelized. All of it channelized. Cups in the sink, for talking to boys, for wearing makeup, for wearing jeans, for wearing a sari, for having a boyfriend. अरे ये सब छोड़ो, मैं बताता हूँ, अगर लड़की मम्मी से सुंदर लगी ना, फिर भी आर वर्ड बोलेगी मम्मी, क्योंकि लॉजिक वो है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुमको. मैं नहीं कह रहा ये यूनिवर्सली ट्रू है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी केसेस में यही हाल होता है. ठीक है, वो एनवी हो ना, आप एस्टिमेट नहीं कर सकते, बहुत खतरनाक एनवी है वो. For rejecting a boy, for using an iPad, for walking, for having breasts. Turns out just existing as a woman makes you a rundy. So no, being a rundy doesn't mean you're a sex worker, it just means that you're a woman. Rundy is actually equal to woman. Because how is it possible that women are being called this word for doing anything and everything? And that's why I don't feel bad about it, because it doesn't mean anything bad in my opinion. It just means that the person who is calling me this word feels helpless that they can't control me anymore. I like that. I don't want to be controlled. I want to be independent and free. I want to be a rundy. Because if I'm not seen as a rundy, that means that I'm actually getting controlled. That they can choose how I live. Oh my god, bro, she's saying ki if so she's indirectly telling her followers, if you do not claim yourself to be a proud R, you are letting yourself get controlled. That's my problem with this woman. ये ऐसे पॉइंट पलटती है एक सेकंड में और पूरी बात बर्बाद कर देती है और उसको टॉक्सिक बना देती है एक सेकंड में करती है ये. और अगर आप में उतना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है कि आप उस एक सेकंड को पकड़ पाओ, आप मैनिपुलेट हो जाओगे बिना सोचे समझे मैनिपुलेट हो जाओगे. आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है ये क्या बोलती है. Feels helpless that they can't control me anymore. I like that. I don't want to be controlled. I want to be independent and free. I want to be a rundy. Because if I'm not seen as a rundy, ये then देखो एक सेकंड में क्या हाल करेगी देखना. independent and free. I want to be a rundy. Because if I'm not seen as a rundy, that means that I'm actually getting controlled. That they can देखा, एक सेकंड में पूरी बात कैसी तैसी कर दी. choose how I live my life. And that is actually worse than being a rundy in my opinion. To be caged, not having freedom. Thank you so much for watching. Let me know what you think. So, as a 15-year-old girl, what I have learned from this video is कि if I do not say I'm a proud Randi, I like being caged and I don't have freedom. Oh no. अब तो मुझे बोलना पड़ेगा. अब तो मुझे I have to call myself a proud R. Because I want to show that I have freedom. पूरी बात का कंक्लूजन चेंज कर दिया. यही तो करती है, वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ. ये यही करती है. लोग क्या है ना, लोग भी तो मंद बुद्धि हैं. लोगों को पता है कि ये बात गलत कर रही है, लेकिन एक्चुअल में ये खेल क्या खेलती है ना, ये बात एकदम सही करती है. कंक्लूजन में गेम खेलती है ये बात ना, जैसे क्लोजिंग स्टेटमेंट ना, इसके सबसे प्रॉब्लमेटिक वो होते हैं. इसकी बात अगर जैसे मान लो ये आपको 15 मिनट एक स्पीच देगी और वो स्पीच इतनी लॉजिकल होगी कि आप उसमें एक फ्लॉ नहीं निकाल पाओगे. उसको जब ये समराइज़ करेगी ना एक लाइन में, वो लाइन में 2 शब्द ऐसे जोड़ देगी जो उस पूरी मीनिंग को फक कर देंगे. वो पूरा मीनिंग डाइवर्ट कर देंगे एक अलग पूरे डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन वो होगा जो ये चाहती है, जो इसको बेनिफिट दे. एंड दैट्स लाइक, ओह माय गॉड, दैट्स सो फक्ड अप ब्रो. Jeez. Well, you'd be so surprised to know there are some girls writing their bio as proud R. तो यार, it's the same as Elvish Yadav fans writing in their bio कि system hang. It's the same thing. It's nothing. I don't take that seriously. But it's sad. It is sad. मेरे लिए दोनों सेम है यार. मेरे लिए ये और एल्विश यादव दोनों सेम है, to be honest. जेन्युइन बता रहा हूँ, जोक नहीं मार रहा. You know, जितने अंधे एल्विश यादव के फैंस हैं, उतनी अंधे इसके फैंस हैं. In fact, her fans are probably more problematic because they think they are following something intellectual. But yeah.
That's like Hindu share and bio, yeah. आई जैसी लड़की ऐसी भेड़ी भेड़ी बातें करके कुछ टाइम बाद पॉडकास्ट करेगी, फिर प्रोडक्ट लॉन्च कर देगी। भाई मुझे, मैं तुमको एक चीज़ बताऊँ, मैं बताऊँगा तो साला मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ। पीटरसन ने ना जब फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात करी थी कनाडा में, तो उसने क्वेश्चन रेज करा था कि यार कनाडा में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग, स्पेशली थेरेपिस्ट्स एंड जो भी लोग वहाँ पे LGBTQ और ये सब को सपोर्ट करते हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं मोस्टली, वो दे वर डूइंग इज कि वो एनकरेज कर रहे थे यंग चिल्ड्रन को, जो अपने जिनको बॉडी डिस्मॉर्फिया था और या फिर उनको जेंडर डिस्मॉर्फिया था, जो जो भी उसको बोलते हैं, दे फेल्ट लाइक दे वर नॉन बाइनरी, दे वर एनकरेजिंग यंग किड्स टू गो थ्रू हार्मोनल मेडिकेशंस टू ऑल्टर देयर हार्मोन्स। ठीक है, तो पीटरसन क्या कर रहा था, बोल रहा था कि ये ख़राब बात है। आपको बच्चों को, अगर वो बच्चा आके बोल रहा है कि मैं एक लड़का हूँ बट मुझे लड़की जैसा फील होता है, आप उसको सहानुभूति दो, आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ये ठीक है। आप उसको दवाइयाँ नहीं दे सकते, जेंडर डिस्फोरिया, या आप उसको दवाइयाँ नहीं दे सकते, क्योंकि वो दवाइयाँ विल ऑल्टर हिज बायोकेमिस्ट्री एंड दैट्स डेंजरस। तो आप दवाइयाँ नहीं दे सकते, एंड ही वॉज अपोजिंग इट। तुमको पता है कनाडा वालों ने क्या करा? उन्होंने कमेटी सेटअप करी इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि भाई ये आदमी इतनी सारी बातें बोलता है और ये अपने आप को साइकोलॉजिस्ट कहता है, इंटरनेट पर जाके दुनिया भर की चीज़ें बक रहा है। अब सोचो, पीटरसन वो बक रहा है जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, बट कनाडा ने क्या करा? कनाडा ने क्या करा कि भाई ये आदमी एक तो थेरेपिस्ट है और ये इंटरनेट पे बातें बोलता है और उसकी बातें बहुत सारे लोग सुनते हैं। ही हैज़ टू बी मोर केयरफुल विद वॉट ही सेज। उन्होंने कमेटी सेटअप करी, ऑलमोस्ट लाइसेंस कैंसिल कर दिया था इसका, ऑलमोस्ट सेटअप इंटेंशन से ये करी थी कि पीटरसन को बताया जाए कि भाई यू नीड टू गो थ्रू यू नीड टू अंडरगो अ ट्रेनिंग about social media and how to say things on social media, how to frame things on social media. I think Peterson refused. मैं जॉर्डन पीटरसन की बात कर रहा हूँ, एंड दिस इज़ लाइक 2020 arguably one of the most intellectual people on planet earth at that particular point of time. अभी तो लोग पीटरसन को देख के मजाक उड़ाते हैं बिकॉज अभी वो थोड़ा बुढ़ा हो गया है, और वो मजाक उड़ाने पे भी हम किसी दिन जाएंगे कि भाई लोग उसका मजाक आजकल क्यों उड़ाते हैं, क्यों उसको लोग सीरियसली नहीं लेते आजकल। बट मैं तुम्हें बता दूं कि भाई Peterson before his medications, because recently इसी चीज़ के बाद sort of Peterson went through a very very bad time in his life and he was addicted to certain medications, और तब से वो आदमी बहुत चेंज हो चुका है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं 2020 के आजू बाजू की बात कर रहा हूँ। He was by far one of the most intellectual people on planet earth। ठीक है, तो तब ये कर रहे थे ये लोग, उसका लाइसेंस कैंसिल कर रहे थे ऑलमोस्ट। और यहाँ पे भाई इसने इतनी सारी चीज़ें बोलती हैं। क्या कर रही है इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन? कुछ है भी ऐसा, मुझे नहीं पता कुछ है कि नहीं ऐसा, बट कोई तो बॉडी होगी जो रेगुलेट करती होगी ये सब। आई एम नॉट सेइंग कैंसिल हर फकिंग लाइसेंस, आई एम सेइंग एटलीस्ट पुट अ फकिंग कमिटी, एटलीस्ट पुट अ फकिंग कमिटी। तुम्हें पता है कितने साइकोलॉजिस्ट हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं? प्रॉब्लमेटिक बात ये नहीं कि ये अपने ओपिनियन शेयर करिए, प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि ये अपने ओपिनियन शेयर करके ये बोलती है कि भाई मैं, तुम्हें मेरी बात सुनना चाहिए, मेरी बात सही है क्योंकि मैं थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हूँ। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि बहुत सारे थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट इससे सीधे मुंह डिसएग्री करते हैं। तो क्या वो थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट नहीं है? और अगर दो थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट इतनी प्रॉब्लमेटिक बात पर डिसएग्री कर रहे हैं और अपोजिट एंड्स में डिसएग्री कर रहे हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। फिर तो भरोसा उठ जाना चाहिए आपका थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से कि वहाँ पे इतने मेजर डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं और पब्लिकली हो रहे हैं, यू नो। क्या लगता है जान कैसी बातें बोलती है आप? जो आई होप ऐसा ही, या फिर शी जनरली बिलीव व्हाट शी सेज। आई थिंक 50-50। ये 50% बिलीव करती है चीज़ों को, लेकिन उनको 50% ये अपने मोटिव्स के कारण एग्जैजरेट करती है, यू नो। जैसे ये जो चीज़ें कहती हैं, ऐसा नहीं कि बिलीव नहीं करती, बट पूरी तरह नहीं करती। उसमें एक एलिमेंट ऑफ एग्जैजरेशन आता है, एक एलिमेंट ऑफ रेडिकलिज्म आता है, वो उसकी लालच या ग्रीड से आता है।
ऑडियंस केटर, या वही ग्रीड है.